गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अ गिब्स फ्री एनर्जी एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बेटा आपको पता है, एक ऐसा सेल जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है विद द हेल्प ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन दोनों होती हैं। बट गिब्स फ्री एनर्जी के साथ हमने इसका रिलेशन करना है। आपने गिब्स फ्री एनर्जी +1 में कर हुई है, बट मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि देखो गिब्स फ्री एनर्जी को समझने के लिए गिब्स फ्री एनर्जी, अब फ्री एनर्जी मतलब फ्री, जिसके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं है। लेट्स सपोज यू आर कंसिडर अ सिस्टम, ये एक सिस्टम है बेटा। हमने कहा कि इस सिस्टम की जो एनर्जी है दैट इज 100 किलो जूल। अगर इस 100 किलो जूल में से वो 60 किलो जूल एनर्जी को यूज कर रहा है, अगर एक सिस्टम के अंदर 100 किलो जूल एनर्जी स्टोर्ड है तो वो उस 100 किलो जूल स्टोर्ड एनर्जी को यूज़ नहीं कर सकता वर्क करने के लिए। जैसे अगर हम अपने ह्यूमन बीइंग बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी है तो हम उस सारी एनर्जी को यूज़ नहीं कर सकते वर्क करने के लिए, जबकि उसका कुछ अमाउंट अगर हम जो अपनी डेली एक्टिविटीज़ करते भी हैं, खाना पीना, बाथिंग, रीडिंग, वॉकिंग, रीडिंग, कुछ भी करते हैं, तो उसके लिए जो टोटल एनर्जी ऑफ आवर बॉडी इज नॉट कंज्यूम but some amount of the energy stored in our body. So we can say that if a system having a 100 kilojoule energy and it's some amount of energy is used for doing the work and some amount of the energy is stored within a system. So let's suppose we are taking an example. If a system having a 100 kilojoule energy in which 60 kilojoule energy is available for doing a work, we can say 60 kilojoule energy is available for what? For doing work. So we can say it is a free energy. Why it is called a free energy? Because 60 kilojoule energy is freely available for doing any work. So that 60 kilojoule energy is called a free energy. Let's suppose if I am saying out of that 60 kg energy, 10 kg of energy is used for doing a further work and 50 kilojoule energy is left, then how much energy is required to do the work? We can say the work done utilize 10 kilojoule energy. But if we calculate the Gibbs free energy, that is a delta G, which we do in a +1. What its formula? Delta G final minus delta G initial. The delta G final is a 50, but in starting how much energy is available? 60. Out of these 60, 50 is left and the 10 kilojoule energy is used for doing the work. Then delta G equal to -10. ऐसे ही अगर हम बोले कि after 50 kg, 40 kg energy is used left. How much energy is utilized? 10 kilojoule energy is utilized for doing the work. And in that case, what is the delta G? 40 minus 50, final minus initial, it is a -10. तो with the help of these example, what we can conclude? क्या conclude कर सकते हैं? We can say that the work done equal to decrease in free energy, or we can simply say the work done equal to free energy. We can say because W is 10 and the delta G is also 10, but the negative sign is here and that negative sign represent that decrease in free energy. This is a very important concept. You can remember this concept with the help of these examples. This is a general example, you cannot write it, but this is for our understanding. With that example you can learn that thing कि work done is equal to the decrease in free energy, because that free energy is in a negative sign. Negative means decrease. So that concept, with the help of that concept, further we do the further relationship between a Gibbs free energy and a electrochemical series. देखो बेटा, तो we can say W work done is a W and free energy is represented by delta G and decrease is represented by minus. So W is equal to minus delta G. That we come from that example which we taken earlier before this, and we know if cell is used, so in electrochemical cell what happens? Chemical energy is produced, electrical energy is produced.
तो वी कैन से हाउ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्क. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्क इन द फॉर्म ऑफ अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो इन टर्म ऑफ फिजिक्स we can say work done equal to charge multiplied by voltage. You know very well, the charge is a Q and the voltage is a W. We can correlate these two equations. This is equation 1, this is equation 2. So we can say instead of W we can write minus delta G Q multiplied by voltage. We know how in the starting of that chapter electrochemical and electrochemistry, you know Q charge is equal to Ne. N is the number of electron and E is the charge on a one electron. If the charge on a one electron, if charge on one electron, 1 mole of electron, that is a 1 Faraday. So we can say 1 electron is equal to 1 Faraday. So Q is equal to NF. If number of electron is used, then we are using a N and F for Faraday. So we can write minus delta G is equal to NFV, or we know that voltage is equal to E naught cell, because in that electrochemical cell the chemical energy is converted into a electrical energy, and which gives the E naught of the cell by using a formula E cathode minus E anode. So instead of writing V, we can write what we can write minus delta G is equal to, in this formula, or you can this formula Q multiply by V. Q की जगह क्या लिख देंगे बेटा, NF, और V की जगह क्या लिख देंगे, E सेल. या फिर आप क्या कर सकते हो, ये नेगेटिव को उधर ले जाओ, डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NF E सेल. तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया किसके बीच में, गिब्स फ्री एनर्जी एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ई सेल. अगर हमने यही इक्वेशन स्टैंडर्ड कंडीशन में लिखनी है, आपको पता है स्टैंडर्ड कंडीशन में हम क्या नॉट लगा देते हैं. स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होगी, जब हम टेम्परेचर कितना ले लेंगे 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 कैलोरी, तो डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल. अब आपको पता है बेटा, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, अब हमने ये बताना है कि वो सेल कब रिएक्शन करेगा, कब उसकी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगी, और उसका गिब्स फ्री एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है, जिसको आप बेटा विद द हेल्प ऑफ 3 पॉसिबिलिटीज आप कर सकते हो. वो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है मैं आपको 1 बाय 1 बताती हूँ. अब देखो बेटा, आपको पता है कि अगर एक सेल वर्क करेगा जब उसकी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगी, आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में करा था, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जो ई सेल है वो कितना क्या होना चाहिए, पॉजिटिव. अगर ई सेल पॉजिटिव होगा तभी तो हम कह सकते हैं सेल इज स्पॉन्टेनियस. अगर वो सेल स्पॉन्टेनियस है तो सेल क्या करेगा, सेल विल वर्क. सेल वर्क करेगा तो उसकी केमिकल एनर्जी किस में चेंज होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. तो अगर हम इसको इसी फॉर्मूले में पुट करते हैं, डेल्टा G माइनस NF E सेल. अब E सेल क्या है, डेल्टा G इक्वल टू माइनस NF E सेल इज पॉजिटिव. तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव. तो डेल्टा G भी क्या आ गया, नेगेटिव. आपको पता है कि अगर डेल्टा G नेगेटिव होता है तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, तभी सेल वर्क करता है. तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, द ई सेल इज पॉजिटिव एंड डेल्टा G इज नेगेटिव, देन द रिएक्शन टेक प्लेस, देन द केमिकल एनर्जी इज चेंज इनटू अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. एंड केस 2, if we say E cell is negative, then what happens with the cell, we can say cell is non-spontaneous. Non-spontaneous मतलब सेल वर्क ही नहीं करेगा, सेल इज नॉट फिजिबल. मैंने आपको पहले बताया था, स्पॉन्टेनियस की जगह हम फिजिबल वर्ड भी यूज कर सकते हैं. अगर हम इसी वैल्यू को इसमें पुट करते हैं, डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NF E सेल, क्या आ जाएगा, माइनस NF E सेल की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया बेटा, प्लस, देन डेल्टा G विल बी प्लस. तो सेल इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस, सेल वर्क ही नहीं करेगा. अब सेल वर्क नहीं करेगा तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था इट इज चेंज इनटू अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल.
जब सेल ने काम करना बंद कर दिया, मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बताई थी पॉसिबिलिटी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, ऑक्सीडेशन किधर होती है, लेफ्ट बीकर में, रिडक्शन किधर होती है, राइट बीकर में। तो जब ये कॉन्टिन्यूशन में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती जा रही है, तो एक टाइम ऐसे आएगा जब सेल काम करना बंद कर देगा। जब सेल काम करना बंद कर देंगे तो हम उसको ई एक्सटर्नल प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाहर से देंगे। जब हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाहर से देंगे तो क्या हो जाएगा, जो ऑक्सीडेशन लेफ्ट बीकर में हो रही थी उसमें क्या हो जाएगी, जिंक की रिडक्शन, और जो हमारे पास कॉपर की रिडक्शन हो रही थी उसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। तो सेल क्या हो जाएगा, सेल विल बी रिवर्स, सेल रिवर्स हो जाएगा और सेल क्या हो जाएगा, काम करना शुरू हो जाएगा। तो क्या हुआ कि अगर हमारे पास ई सेल नेगेटिव होता है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। टू चेंज इनटू अ स्पॉन्टेनियस the cell will be reversed, it is changed into a electrolytic cell. And third possibility is that if the E cell is 0, अगर E cell 0 तो क्या होगा, डेल्टा G is equal to minus NF E cell, तो E cell क्या हो जाएगा, 0 minus NF, then delta G equal to 0। बट डेल्टा जी कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर हम इसको इस फॉर्मूले से देखें तो हम 0 को किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आ जाता है। अब हमें पता है कोई भी एक रिएक्शन ऐसी कभी भी नहीं होगी जिसमें n 0 होगा, क्योंकि हमेशा मेटल के केस में n कुछ ना कुछ होगा ही, चाहे 1 होगा चाहे 2 होगा। F कैन नेवर बी 0, वो जिसकी वैल्यू अगर हम 1 फैराडे भी लें तो वो कितनी है, 96500। तो डेल्टा जी कैन नेवर बी 0, वो कभी 0 नहीं हो सकता। बट उस सिचुएशन में क्या हो जाता है, एक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। तो इसमें सेल रिएक्शन क्या होगी, सेल रिएक्शन है ना इक्विलिब्रियम। तो अगर ईएमएफ सेल का 0 हो जाता है तो हम क्या कह सकते हैं, व्हेन द ईएमएफ ऑफ सेल बिकम 0 देन नो यूजफुल वर्क इज डन बाय सेल। भाई सेल कुछ काम तो कर रहा है क्योंकि सेल इक्विलिब्रियम में है। ई सेल 0 हो सकता है बेटा, कभी डेल्टा जी 0 नहीं हो सकता। क्यों, ना ही एन 0 होगा ना ही एफ 0 होगा। तो सेल कुछ काम तो करेगा बट वो जो काम करेगा वो क्या होगा, हमारा यूजफुल वर्क नहीं होगा। अगर वो यूजफुल वर्क नहीं है तो हमारे पास सेल किस सिचुएशन में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में आ जाएगा। और जब इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में आ जाएगा तो हम इसके लिए अगर नर्नेस्ट इक्वेशन लगाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 n द कंसंट्रेशन ऑफ अ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय अ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इस इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में हम सेल को क्या बोल देते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ अ सेल, जो हमारा क्या है नेक्स्ट टॉपिक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द सेल। एक टॉपिक था ये बेटा रिलेशनशिप था गिब्स फ्री एनर्जी और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। वो क्या रिलेशन है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF E सेल। ये कैसे आया वो मैंने आपको बताया कि पहले जो वर्क टर्म था वो डिक्रीज इन फ्री एनर्जी चेंज है। वो कैसे होता है वो मैंने आपको कंडीशन से एक समझा दी है। फिर फिजिक्स की टर्म में W किसके इक्वल था, Q मल्टीप्लाई बाय V। Q किसके इक्वल हुआ, NF के हुआ, V किसके हो गया, E सेल के हो गया। तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन में हमने बताया कि अगर हमारे पास ई सेल की अलग अलग पॉसिबिलिटी कि कब एक रिएक्शन होगी और कब एक रिएक्शन नहीं होगी। कब एक रिएक्शन होगी, जब हमारे पास ई सेल पॉजिटिव होगा। अगर ई सेल पॉजिटिव है तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, देन द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। अगर E cell is a negative and the delta G is a positive, then the reaction is non-spontaneous. In that case, the electrochemical cell is changed into an electrolytic cell and the totally reaction is a reverse. And the third situation is that if the E cell is the 0, then cell attain a equilibrium. In equilibrium, the delta G can never be 0, but the cell do the work, and that work is not utilizable by us because in that the chemical energy is not changed into electrical energy. But E cell can be 0, delta G can never be 0. This is the third possibility. After that, we will discuss the concentration cell in the next video. Thank you.